हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ प्रीवियस नॉलेज हमें होना चाहिए और गॉस थ्योरम को जानने से पहले और उन एप्लीकेशंस को सॉल्व करने से पहले कुछ और टर्म्स के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए कम्प्लीटली। तो पहले हम उन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो राइट डाउन continuous charge distribution. First of all, name of the chapter Gauss law and its applications. Gauss law and its applications. So the first important thing is continuous charge distribution, and you will have to remember the following points. Write down continuous charge distribution, continuous charge distribution, continuous charge distribution, and remember the following formulas that will be very useful for you. First, linear charge density, linear charge density, linear charge density, it is denoted by lambda, and its formula is charge upon length, this is the total length. okay, तो if सर्किल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन 2πr। अगर सर्किल के लिए अप्लाई करेंगे तो सर्किल की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी 2πr, तो ये हो जाएगा l की जगह 2πr। और अगर ये एक स्क्वायर के लिए लेंगे तो 4 इंटू जो भी लेंथ होगी या जो भी उसकी आर्म होगी तब हम ये ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला जो l लेंथ है वो उसकी सरकमफेरेंस जो पूरी है उस पर डिपेंड करेगा कितनी बड़ी है। तो l ये एक एग्जांपल देके मैंने समझा दिया है, ठीक है, इसको एग्जांपल मान सकते हैं हम। ओके, सेकेंड वाले का ये हमें याद रखना है। सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी वी यूज द सिंबल सिग्मा एंड द फॉर्मूला इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं इस फेयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर, बिकॉज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4πr स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, volume charge density, it is volume charge density denoted by sigma symbol rho, rho is equal to charge per unit volume, charge per unit volume। एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। स्फेयर के लिए अगर हम करेंगे, फॉर स्फेयर के लिए वॉल्यूम अगर हम निकालें तो फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3πr क्यूब। सो वी कैन पुट Q अपॉन V की जगह हम लिख सकते हैं 4/3πr क्यूब। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दीज थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, you will have to remember because we will use these formulas while calculating the result of electric field in applications of Gauss law. So write down, very important. Okay, so the next one is I will explain you an example that it is a very important example in your book, and sometimes this question have already asked in your examination, so I will explain it to you. Note it down. Okay, now I will erase.
So you can pause the video and then make your notes and then play again. So we will not waste our time here. I am not waiting for you that you are just writing down, because you can pause and then you can write down anything, whatever you want. So the next thing is that we are discussing is an example, and in this example it is given that example, a charge is uniformly distributed on a ring. A charge is uniformly distributed on the ring. So I think that the ring is hollow from inside. So any charge will be given, any charge which is given to the ring will be spread on its surface. So we'll have to calculate electric field at point P, which is on the axis of the ring, which is on the axis of the ring, the resultant electric field. Okay, so according to this chapter we will calculate. So look at the board, very interesting question. That there is a ring, there is a ring, a charge is uniformly distributed on its surface, plus 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 plus. Point P is on the axis of this ring at a distance, it is given in the question, at a distance x, and the radius of the loop is r. Distance x, radius of this loop is r. Okay, so we'll have to calculate the resultant electric field at point P due to the ring. So it is basically a 3D diagram. So you can assume this like look at this. So this is the ring, consider that this is the ring, and the charge is spread on its outer surface only. So charge is spread on the circumference. You will have to calculate electric field at point P, electric field at point P on the axis of the ring. Okay, so we'll have to calculate. So we can calculate it easily, it's not a difficult one. So first of all, make the diagram, just complete the diagram, and then we will calculate. So not the tough one. So first of all, mark two areas, because this ring is not infinite long. We can measure the dimension of that ring, we can calculate the dimension of the ring, that it is not infinite long. So to describe its total dimension, I will cut two length from here, so we can have the complete approximation of its height. So we can have complete approximation of its height. So name both the areas, name both the areas 1 and 2. 1, this area is called 1. Okay, I will highlight it. 1 and 2, highlight area, this is called 2. And due to both these parts, what will be the resultant electric field at point P? So make point P here, x, point P. So due to this, like this, and due to that point, like this, and this is the axis, you know this. Okay, this is the axis. So complete the diagram like this. And if this angle is theta, if this angle is theta, then it is equally at equal distance, it is also theta, and these angles are also theta. So this the making angle theta is the base component. So we can write here d e2 cos theta due to part 2, d e1 cos theta due to part 1, due to part 1 and 2, due to part 1 and 2. Okay, so write down, and the perpendicular component of cos theta is
definitely sin theta. Definitely these components are sin theta. So write down dE1 sin theta and dE2 sin theta. dE1 sin theta and dE2 sin theta. dE1 sin theta, and this component is dE2 sin theta. Okay, the cos components are in one direction, so the vectors are which are on the same direction or at the same line, we can add those vectors. The vectors which are opposite, equal and opposite in magnitude, we cancel those vectors if their magnitude is equal. Okay, so make the diagram like this and denote the points, the respective points dE1 and dE2, dE1 and dE2. This is due to dE1 and this is due to dE2 because of area 2. Okay, the diagram is complete. Now we can calculate dE1 and dE2. Because due to the similarity of diagram, we can write dE1 is equal to dE2. dE2. What is the formula due to a cylindrical surface? Can you write here? So the formula is KQ upon R square. KQ upon R square. We can calculate. So Q is Q. Okay, the given charge is Q. We don't know anything about this charge, so it is Q. It will be considered as Q. Now KQ upon R square. We don't know this distance, but we know that it is R, capital, it is X, then it will be R square plus X square under root. So if we will square, then square and root cancel, so we can write X square. Okay, KQ upon R square, but there is root that will be cancelled out by that square. So KQ upon R square plus X square, we can determine this length, and due to similarity of diagram, this length is also root R square plus X square. So we have noted down. At the place of Q, we can write, K. This charge is spread in the length. This charge is distributed in length. तो हमने देखा ये कि लेंथ पे अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो चार्ज लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल. तो जो हमारा क्यू हुआ वो क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल. लैम्डा इंटू एल, तो हम इसकी जगह लिखेंगे क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल, एंड ये तो एज इट इज़ लिख देंगे. लिख लीजिए. Okay, now this length is similar, small length dl, so we'll have to write here lambda dl. Okay, lambda dl. Okay, now you will have to write one line that since sine components are equal in magnitude and opposite in direction, so cancel each other, only cos components will be left, will remain. Write down.
So clearly visible to you. That is part 2 and that is part 1. Now according to me, we can calculate the resulting electric field due to the cos components. So इरेज करेंगे इसे और फिर कैलकुलेट करेंगे. डायग्राम आपने बना लिया होगा या पॉज करके बना लीजिएगा, मैं मिटा के आगे का कंप्लीट कर रहा हूँ. अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल हमारा जो है कोस कंपोनेंट्स की वजह से बचेगा. तो जो कोस कंपोनेंट्स है जिनकी वजह से ये बचेगा उसके लिए हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसकी जगह आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी ई कोस थीटा. अगर हमने एंगल थीटा माना था तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डी ई कोस थीटा. और डी ई की जगह आपको क्या लिखना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अगर रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो कोस थीटा के कंपोनेंट्स बचेंगे और ये तो पहले ही हम निकाल चुके हैं शायद. DE1 और DE2, DE1 और DE2 है ना, ये कितने निकले थे हमारे, K लैम्डा. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कोस थीटा. तो जो प्रीवियस हमारा डायग्राम था उससे कोस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस जो था वो x एंड हाइपोटेनियस था हमारा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रूट के अंदर. तो वो हम लिख सकते हैं बच्चों. तो कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का रूट. रूट को हम लिख सकते हैं पावर हाफ. तो ये हो गया हमारा K लैम्डा DL. x तो रहेगा और ये पावर हो जाएगी इधर पावर 1 प्लस हाफ, पावर 3/2. 1 प्लस हाफ तो पावर हो जाएगी हमारी 3/2. ठीक है, ये लिख लिया हमने. ओके, तो डी ई कोस थीटा जो रिजल्टेंट था वो हमने निकालने की कोशिश की. यहाँ तक हम पहुँच गए हैं. अब जो भी यहाँ कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम ये करेंगे कि डीएल का इंटीग्रेशन जो अभी हद तक हमारा बच रहा है वो हम करेंगे. एक्चुअल इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं करने. अब यहाँ पे हमें ई निकालना है. ठीक है बच्चों, अब ई निकालना है तो यार इसका इंटीग्रेशन करो ना. ई निकालना है तो डी ई का इंटीग्रेशन तो ई हो जाएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे. के लैम्डा एक्स, ये भी बाहर आएगा, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस तो बदलती नहीं है और जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो भी हमने फिक्स कर दी है 3/2. और बच्चों जो DL है इसका इंटीग्रेशन करोगे. एक्चुअल इंटीग्रेशन तो करना नहीं है. जो DL था वो किस लेंथ का छोटा सा पार्ट था, वो एक सर्किल की लेंथ का छोटा सा पार्ट था. तो सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी है, 2πr. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2πr. तो ये हो जाएगा K लैम्डा एक्स अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 और इस DL का इंटीग्रेशन आप लिख देंगे 2πr. ठीक है, DL का इंटीग्रेशन लिख देंगे 2πr बिकॉज ये जो छोटी सी लेंथ थी इट वाज द पार्ट ऑफ ए सर्किल एंड द रेडियस ऑफ सर्किल इज कैपिटल R. सो यू कैन राइट हियर कैपिटल R. सो you have solved this. Okay, you have completed this already. So very easy question. Okay, if you want to derive any kind of final formula for this, so we can further calculate it, but I think that's enough. Now we will discuss Gauss law and some important things about Gauss law, because the basics that is required we already know. तो अब जो आगे का पार्ट है बच्चों ये उतार लिया होगा आपने, इरेज कर देता हूँ मैं, फिर अपन गॉस लॉ के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारे चैप्टर का एक्चुअली नेम है जिसके बारे में हमें स्टडी करना था. तो बेसिक्स में जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से. ठीक है, वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ पीछे आके क्लियरली दिख रहा है सब कुछ. ओके, तो अभी 20 मिनट का वीडियो और बना सकते हैं हम, तो बनाते हैं. मिटा देता हूँ. तो गॉस लॉ को भी आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसी लेक्चर के अंदर.
तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है गॉस लॉ। सो राइट डाउन गॉस लॉ, गॉस लॉ। सो राइट डाउन द गॉस लॉ। The total electric flux, write down that the total electric flux passing through a closed surface is equal, the total electric flux passing through a closed surface is 1/epsilon naught times of total charge. So we can write phi is equal to total charge is sigma q and 1/epsilon time मतलब this is called Gauss law. Write it down. This is called Gauss law. Okay. So there are some very important points which we have to discuss about Gauss law. Without that, the Gauss law is not complete. So write down, for Gauss law to be applicable, the surface should be a closed surface. The surface should be a closed surface. सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होगी। क्यों? देखो बच्चों, ये सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर से अगर चार्ज होगा हमारा कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। अब हमें टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है और सपोज ये सरफेस कहीं से ओपन रह गई, क्लोज सरफेस नहीं है, तो जो फ्लक्स होगा वो तो बाहर लीक कर जाएगा, और फ्लक्स अगर लीक कर गया तो फिर एक्चुअल फ्लक्स कितना था वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सरफेस हमेशा क्लोज होगी इसके लिए। अगर ओपन सरफेस हुई तो आपका फ्लक्स लीक करेगा बाहर, और फ्लक्स लीक करेगा तो फिर उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना काउंट हुआ, कितना टकराया, वो तो हम बता नहीं पाएंगे। तो सरफेस हमेशा क्लोज होगी। कारण बता दिया मैंने आपको, ऐसा क्यों होगा। तो सरफेस शुड बी क्लोज्ड। द सेकेंड पॉइंट, द सरफेस should be symmetric. Surface should be symmetric. सरफेस जो भी होगी चारों तरफ उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के, वो सिमेट्रिक होगी उस शेप के लिए और साइज़ के लिए, क्योंकि अगर वो सिमेट्रिक नहीं होगी तो हर जगह अलग एंगल बनेगा, जो कि हम देखते हैं कि कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों अगर मैंने लिया इस तरीके से कोई सरफेस ले ली, ऐसे कोई सरफेस ले ली इरेगुलर, अब यहाँ पे अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो देखो यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा, ये कुछ एंगल बनेगा, फिर अगर यहाँ पे कुछ जाएगा तो बच्चों देखो यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो ये एंगल जो है θ2 ये तो θ1 से बिल्कुल अलग बन जाएगा। तो अगर हर एंगल अलग अलग बनेगा तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप कुछ एंगल्स की वैल्यू तो याद रख सकते हैं, जैसे कि आप कोस 90 डिग्री की याद रख लोगे, 0 होती है, कोस 0 की 1 होती है, कोस 180 की -1 होती है। तो कुछ वैल्यूज़ को तो आप रिमेंबर रख सकते हैं, बट बहुत सारे एंगल्स को आप कैसे याद रखेंगे? अब अगर ऐसे इरेगुलर शेप के कारण कोई एंगल आ गया 43 डिग्री, कोस 43 कैसे बताएंगे आप? कोस 78 डिग्री, कोस 63 डिग्री, तो हम जानते हैं कि ऐसे अलग अलग एंगल्स बताना पॉसिबल नहीं है। तो जो सरफेस होगी, जो भी हम सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिक सरफेस लेंगे, उस जो भी हमारी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं
लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कर रहे, स्फेयर के लिए कर रहे, प्लेन शीट के लिए कर रहे, उसी के सिमेट्रिक हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, ताकि एंगल जो आए वो अलग अलग ना आए, 0, 90 या 180 डिग्री आए, ताकि हम कैलकुलेट ईजिली कर पाए। ठीक है, कारण मैंने बता दिया द सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, और ब्रैकेट में आपके अंदाज के लिए लिख भी देता हूँ कि थीटा 0 बने या फिर 90 बने या फिर 180 बने। बहुत ज़्यादा एंगल्स का क्या मतलब है, ये है सिमेट्री का मतलब कि उस डायग्राम से मिलती जुलती हो। कैसे 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 दिखा देता हूँ इधर, देखो अब कोई लेंथ में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ, तो बताओ इसका फ्लक्स चारों तरफ ऐसे निकलेगा ना, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकल सकता है थोड़ा। तो अब क्या करोगे, लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी सरफेस सिमेट्रिक होगी, एक सिलेंडर देखो ऐसे किया, यहाँ से फ्लक्स टकरा जाएगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे इसको 2 ढक्कन पहना दिए लिड, ये देखो, तो यहाँ से आने वाला फ्लक्स यहाँ पे भी फ्लक्स लीक हो सकता है, यहाँ पे भी एक ढक्कन पहना दिया एक लिड, अब यहाँ से जाना वाला फ्लक्स इधर से टकरा जाएगा, तो टोटल फ्लक्स होगा उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और देखो बच्चों सबसे अच्छी बात कि अब एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो ये थीटा बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, यहाँ पे आने वाला देखो मैंने इधर माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर आ रहा है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, थीटा 0 मान सकता हूँ मैं। ठीक है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आएगा, इधर भी थीटा 0। ठीक है, तो मैंने देखा बच्चों कि यहाँ पे काफ़ी कम चीज़ों से मेरा काम चल रहा है, 0 डिग्री, इधर भी 0, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो जाए। तो सिमेट्रिक का मतलब है जैसे कि अब ये एक स्फेयर है, सपोज एक फुटबॉल है मेटल की, अंदर से होलो है, उस पर चार्ज दोगे तो अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि अंदर एटम नहीं है, बाहर सरफेस पे फैल जाएगा। अब इसकी मैं कोई सरफेस अज्यूम करूं, क्योंकि गॉसियन सरफेस है कि इमेजिनरी सरफेस है, तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ ये देखो, तो इस स्फेयर के साथ में क्यूब की सिमेट्री नहीं है, हर जगह अलग एंगल आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल आ जाएगा, सब जगह अलग अलग एंगल आएंगे। तो हमने देखा कि ये तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, तो इसकी सिमेट्री बैठी नहीं। अगर मैं इस स्फेयर के चारों तरफ एक स्फेयर ही बना लेता, क्योंकि देखो अगर ये चार्ज यहाँ पे किसी स्फेयर को दिया गया है जो कि होलो स्फेयर है, तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ निकलता है। अगर सिमेट्री के लिए मैं एक और कंसेंट्रिक स्फेयर ही बना दूँ तो देखो सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी टकराएगा वहाँ पे एरिया वेक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। ठीक है, इधर भी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो उसको एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो हर जगह जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिला तो काम आसान हो जाएगा बच्चों। तो हमने देखा कि सिमेट्री के लिए हम चाहते हैं, तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम एन imaginary Gaussian surface which satisfy above two conditions, which satisfy above टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस, सरफेस सिमेट्रिक हो, अलग अलग एंगल ना बनाए, उस डायग्राम से मिलती जुलती हो, और क्लोज सरफेस हो ताकि निकलने वाला फ्लक्स है वो टकरा जाए और हम उसे कैलकुलेट कर पाए। उतार लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गॉस लॉ को यूज़ करते टाइम पे काफ़ी काम आएंगे आपके, आप उतार लीजिए इन्हें। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको गॉस लॉ के बारे में बताई जाएगी, और फिर इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे, फिर उसके साथ में चैप्टर हमारा फिनिश होगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा के नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ गॉस लॉ के बारे में। ओके।
अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसके अंदर सम इम्पोर्टेंट points about Gauss law. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि जो सरफेस है वो सिमेट्रिक होगी, हर जगह अलग अलग एंगल ना बनाए, सरफेस सिमेट्रिक होगी। दूसरा क्लोज सरफेस होगी। तीसरा ये सरफेस इमेजिनरी होगी। चौथा गॉस लॉ की खुद की डेफिनेशन की सिग्मा क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज बाई ए सरफेस कितना टाइम्स 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ भी हमने किया। तो फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए दैट इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। क्या लेंगे इसे बताइए आप। इनकमिंग फ्लक्स को हम किस तरीके से लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो भी हमारी इनकमिंग फ्लक्स होगी, ठीक है, तो उसे हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो जो एरिया वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे अच्छे से। इनकमिंग फ्लक्स को लेंगे नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को लेंगे पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स को लेंगे पॉजिटिव, पहला रूल है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, द टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड सरफेस, any closed surface is total related to any closed surface doesn't depend on size and shape of ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल देके समझाइए थोड़ा। आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका थोड़ा एग्जांपल देके बता देते तो अच्छा रहता। तो देखो अच्छा है तो अगर हम बता भी देते हैं, आपने पूछा है तो, कि साइज़ और शेप पे डिपेंड इस तरीके से नहीं करेगा बच्चा कि फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो केवल और केवल चार्ज पे, कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। जैसे कि इस सरफेस से रिलेटेड अगर मैं निकालूं तो टोटल अगर इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं उनका सिग्मा क्यू करूँगा, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो सबका क्या निकालूंगा मैं, सिग्मा क्यू, ठीक है। सबका सिग्मा क्यू निकालूंगा तो, और एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट ही है, तो कितना चार्ज अंदर है उस पर डिपेंड करेगा, कितना चार्ज अंदर है केवल फ्लक्स निकलने वाला उसी पे डिपेंड करेगा, साइज़ और शेप पे कुछ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें निकालूं कितना चार्ज अंदर है, या फिर इस शेप के लिए निकालूं, या फिर इस शेप के लिए निकालूं, ठीक है, या फिर इस शेप के लिए निकालूं, ठीक है। किसी से भी रिलेटेड अगर आप निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स तो हमेशा कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे इरेगुलर शेप की ले लीजिए, सबसे रिलेटेड टोटल फ्लक्स हमेशा सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नोट ही होगा। कितना चार्ज इनके अंदर है, कितना चार्ज इनके अंदर है, कितना चार्ज इनके अंदर है, कितना चार्ज इनके अंदर है। तो सबका कोई भी डिज़ाइन ले लो। तो जैसे कि मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोलूँ, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार
एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि अगर मैं किसी स्फेयर की रेडियस को डबल कर दूं तो निकलने वाले फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या आंसर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप रेडियस को डबल कर दो, 4 गुना कर दो और बड़ा कर दो उस स्फेयर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं करता है साइज़ और शेप पे। ना उस फॉर्मूला में रेडियस है ना कुछ एरिया है, उनमें सिर्फ चार्ज है, कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब वो चाहे क्यूब हो, स्फेयर हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है केवल उसी पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो केवल उसी पे डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप रेडियस 10 गुना करो, एरिया बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब कोई चार्ज आउटसाइड रखा हुआ है सरफेस के, कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, द चार्ज lies outside the surface will not be considered। उसको ऐड ही नहीं करेंगे अपन, सिग्मा क्यू के अंदर ऐड ही नहीं करेंगे। अगर कोई चार्ज बाहर पड़ा हुआ है उसको ऐड ही नहीं करेंगे। So the charge lies outside the surface will not be considered in calculating flux, ठीक है। तो जैसे ये मान लिया अपन ने Q1 Q2 बाहर है, Q3 अंदर है, तो जो सिग्मा क्यू होगा बच्चों, वो सिग्मा क्यू का मतलब होगा Q1 प्लस Q3। Q2 से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर है। बाहर वाले के फ्लक्स को अपन को निकालना ही नहीं है। सरफेस के अंदर कितना एनक्लोज है केवल उसी चार्ज के बारे में है। तीनों पॉइंट लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, चार्ज सरफेस में कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे है, कोने में या सेंटर में है, या फिर इस कोने में है। ठीक है। चार्ज किस पोजीशन पे रखा हुआ है क्लोज सरफेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकलने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। क्लोज सरफेस में होना चाहिए, सरफेस में किस पोजीशन पे रखा हुआ है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये उतार लिया होगा आपने। मिटा रहा हूँ। in closed surface position of charge doesn't have in closed surface position of charge doesn't have importance in कैलकुलेटिंग, किसी भी पोजीशन पर रखा हो कोई मतलब नहीं है, इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतार लीजिए फटाफट। टोटल चार्ज तो हम किस तरीके से निकालेंगे आप जानते ही हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को एज इट इज़ जोड़ देंगे हम। ठीक है, ठीक है। ये हमने लिख लिया बच्चों। तो एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर इस लेक्चर का एंड करते हैं। ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट, अच्छा हाँ याद आ गया। सरफेस को अगर इफ़ surface is reduced to
हाफ और 1/4 और 1/8 टाइम्स देन total flux also reduced that much times जितने गुना आपने एरिया को कम या ज़्यादा किया है रिलेटेड फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा उसका 1/2 किया है, 1/4 किया है, 1/8 किया है, जितना भी आपने उस सरफेस के एरिया को कर दिया है फ्लक्स भी उतने ही टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन एक क्यूब का और बता देता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कई बार प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब के तो और भी क्वेश्चन आएंगे तो तब मैं इसको अलग से करवा दूँगा। तो एक क्यूब का भी इसमें रूल है, ठीक है, तो वो मैं अलग से एक टॉपिक के अंदर आपको करवा दूंगा कि एक क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।